ہم شہباز خان وغیرہ سے کافی دور نکل آئے اور پھر ایک بڑی چٹان کے عقب میں ہم دونوں رک گئے۔ آؤ اوپر بیٹھیں گے، طالوت نے کہا، اور ایک مناسب راستے سے چڑھ کر ہم چٹان پر پہنچ گئے۔ صاف ستھری چٹان پر بیٹھ کر میں نے منہ اٹھا کر تازہ ہوا پھیپھڑوں میں بھری اور پھر اسی چٹان پر دراز ہو گیا۔ طالوت گھٹنے سکوڑے بیٹھ گیا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ تب میں نے گہری سانس لے کر طالوت کو مخاطب کیا اور کہا، طالوت میری جانب دیکھنے لگا۔ بہت گہری سوچ میں ہو، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، آئندہ پروگرام پر غور کر رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤ طالوت، پوچھو، کیا ہماری قسمت میں زندگی بھر صحرا گردی لکھی ہے؟ کسی مقام پر قیام ہوگا یا نہیں؟ تم اکتا گئے ہو عارف؟ طالوت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے احساس ہے میرے دوست، اپنی تفریح تباہ کی خاطر میں نے تمہیں بھی دربدر کر دیا ہے۔ دراصل میری طبیعت تمہاری طبیعت سے اس قدر ہم آہنگ ہے کہ تم میری شخصیت کے ایک جز بن گئے ہو۔ لیکن عارف برا مت ماننا، میں تو ابھی اپنی دنیا میں واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میری دنیا پر جمود طاری ہے اور مجھے اس قبرستان سے وحشت ہوتی ہے۔ میں تو ابھی تمہاری دنیا دیکھوں گا، لیکن میرے دوست، اگر تم میرا ساتھ نہ دینا چاہو تو میں تمہیں خدا حافظ کہہ سکتا ہوں۔ میں تمہارے اعلیٰ مستقبل کا انتظام کر دوں گا، پوری زندگی عیش و عشرت میں گزار سکو گے۔ اس بکواس کا کیا مطلب؟ میں نے بھرنائے ہوئے انداز میں کہا۔ برا مت مانو، میں نے ایک بات کہی ہے۔ تمہارے سوال کے جواب میں، تمہیں حق ہے کہ اپنی دنیا کے ماحول کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تمہیں بھی بیوی بچوں کی اور تمہاری ایسی کی تیسی فضول بکواس مت کرو، میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی میں نے تو… کیوں ذلیل کر رہے ہو طالوت؟ ایک درخواست ہے، جب تمہارا اس دنیا سے دل بھر جائے اور تم واپس جانا چاہو تو براہ کرم میرا ایک کام ضرور کرتے جانا۔ اوہ کیا کام؟ راسم سے کہہ کر کوئی زہر میرے لیے مہیا کرا دینا، مجھے جسے کھانے کے بعد تکلیف کا کوئی احساس نہ ہو اور انسان کچھ سوچے سمجھے بغیر مر جائے۔ میں تم سے علیحدگی کے تصور کے چند لمحات بھی نہیں گزار سکتا۔ مجھے تیری دوستی پر ناز ہے عارف، میں خود تجھ سے جدا نہیں رہ سکتا، لیکن بس کبھی کبھی تیرا خیال آ جاتا ہے، کہیں تو صرف مروت میں میرا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ نہیں طالوت میرے دوست، میں ایک بے سہارا انسان ہوں، میری دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ تیری میت میری زندگی کا ستون ہے، تو چلا گیا تو یہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ عارف، طالوت چونک کر بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کیا ہم دونوں پاگل ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ پھر یہ بکواس کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ظاہر ہے نہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ تو مجھے۔ پھر ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا۔ دوسرے قدم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے کیا سوچا ہے جو اب سوچیں گے؟ جدھر منہ اٹھا چل پڑیں گے، گویا رات کو آرام کیا جائے۔ بے شک، ٹھیک ہے، آرام کرو، طالوت نے کہا، اور پھر اس نے سنجیدگی سے سونے کی ٹھان لی اور شاید تھوڑی دیر کے بعد سو بھی گیا۔ لیکن مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ چاند نکل آیا اور میں چاند پر نگاہیں جمائے خیالات میں الجھا رہا۔ لیکن یہ بھی بے خوابی کا ایک مجرب علاج ہے۔ نہ جانے کب چاند کی سنہری ٹھنڈک میری آنکھوں میں نیند لے آئی، اور دوسری صبح جب میں جاگا تو سورج ناگواری سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر طالوت کو دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ چٹان کے عقب میں نیچے کی سمت دو گھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، اٹھو، کافی دیر تک سو لیے؟ ہاں، میں ایک انگڑائی لے کر اٹھ گیا۔ چٹان کے آخری کونے پر پانی کے برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ طالوت نے اس طرف اشارہ کیا اور میں ضروریات سے فارغ ہونے لگا۔ منہ ہاتھ دھو کر جب میں طالوت کے پاس پہنچا تو وہ دسترخوان کے سامنے بیٹھا تھا اور دسترخوان پر عمدہ قسم کا ناشتہ موجود تھا۔ اوہ، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ آج کی ضیافت راسم کی طرف سے ہے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، میں نے طویل سانس لی اور پھر ہم دونوں نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ یہ گھوڑے؟ یقیناً سرتاج خان کے بھگوڑے سپاہیوں کے ہوں گے، خود بخود آگے تھے بیچارے۔ میں نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ طالوت مسکراتے ہوئے بولا، خوب۔ میں ہنسنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کافی دیر تک ہم لوگ ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہے۔ بہت سے لوگ زیر گفتگو آئے اور پھر طالوت نے دور، بہت دور پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان پہاڑیوں کے دوسری طرف کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، کیوں نہ ادھر کا رخ کیا جائے؟ جیسا پسند کرو، میں نے جواب دیا۔ ادھر ہی چلیں گے، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ سر تسلیم خم ہے، میں نے جواب دیا، اور طالوت دور سے دھوئیں کی مانند نظر آنے والی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھ گیا۔
اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار خراما خراما اس طرف جا رہے تھے۔ چاروں طرف پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، بڑا خشک سفر تھا۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھا، اس کا باقاعدہ سفر کرنے کا ارادہ تھا، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ پلک جھپکے اور ہم پہاڑوں کے نزدیک ہوں۔ لیکن موڈی جن تھا، اس نے صرف گھوڑوں پر قناعت کی تھی۔ چنانچہ پورا دن سخت تکلیف میں گزرا۔ جب شام کی ہوائیں اندھیرے کو کھینچ کر لانے لگی تو ہم ایک سبزہ زار میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں سبز گھاس کے میدان تھے، دور ایک ندی گنگناتی ہوئی گزر رہی تھی۔ پیاسے گھوڑے اس طرف دوڑنے لگے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گھوڑوں نے پانی میں منہ ڈال دیا اور ہم نے ان کی پشت چھوڑ دی۔ تالوت چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں کہیں خودرو درخت اگے ہوئے تھے، بڑی بڑی چٹانیں دور تک بکھری پڑی تھیں۔ عجیب سا علاقہ تھا، پراسرار اور خوبصورت، عمدہ جگہ ہے، اس نے کہا، اور ہم نے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی۔ وہ پہاڑ زیادہ دور نہیں تھے جنہیں ہم نے صبح کو دیکھا تھا، بڑے خوبصورت پہاڑ تھے۔ ان کی چوٹیوں پر سفید سفید برف کی ٹوپیاں نظر آ رہی تھیں۔ برف پگھل چکی تھی، ورنہ یہ سارے پہاڑ ہی برف پوش تھے۔ موسم بھی نہایت عمدہ تھا، طبیعت میں شگفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک عمدہ سی جگہ بیٹھ کر ہم نے پاؤں پھیلا دیے اور رات کی چادر ماحول پر آ پڑی۔ سورج غروب ہو گیا، آسمان پر ابر کے ٹکڑے سر جوڑنے لگے۔ بارش، تالوت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرا خیال ہے بارش نہیں، برف باری، بڑا حسین منظر ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی بے حد پسند ہے، لیکن میرے عزیز، اگر یہ برف باری ہو ہی گئی تو کیا رات برف کے ذرات سے ہم آغوش ہو کر گزاری جائے گی؟ یہاں بہت سی چٹانوں کے سائبان موجود ہیں، کہیں بھی پناہ لے لیں گے۔ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لی۔ بھوک لگ رہی ہے راسم، تالوت نے دائیں طرف رخ کر کے کہا۔ آقا، راسم نگاہوں کے سامنے تھا۔ کھانے کا وقت ہے، کیا پیش کروں؟ راسم نے کسی ویٹر کے سے انداز میں پوچھا۔ اپنا آرڈر نوٹ کرا دو، تالوت نے ہنستے ہوئے کہا۔ راسم مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جاؤ یار، لے آؤ جو دل چاہے، تالوت نے کہا، اور راسم نے گردن جھکا دی اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد راسم نے تازہ گرم اور لذیذ کھانوں کے ڈھیر لگا دیے اور ہم کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ ننھے ننھے سفید ذرات آسمان سے ہماری طرف لپکے اور ہم مسرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ قدرت نے انسان کی دل بستگی کے لیے کیا کیا سامان مہیا کیے ہیں۔ تالوت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اس نے جلدی سے گردن جھکا لی۔ برف کے ذرات آنکھوں میں آ پڑے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم ایک چٹان پر جا چڑھے۔ چٹان پر برف بکھری ہوئی تھی، ایک ہلکی سی تہ۔ ہم اس پر بیٹھ گئے اور نیچے کی برف ہمارے جسموں کی حرارت سے پگھلنے لگی۔ ہمارے شانوں پر، سر پر اور جسم کے دوسرے حصوں پر برف کے ذرات جم رہے تھے، اور جب ہم انہیں جھاڑتے تو سفید برادہ سا بکھر جاتا۔ دونوں خاموش تھے، لیکن دونوں ہی اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کافی دیر گزر گئی، برف برابر گر رہی تھی۔ تب دور، کافی دور، اچانک ایک روشنی سی نظر آئی اور ہم تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ عارف، تالوت نے مجھے مخاطب کیا۔ ہاں؟ روشنی دیکھی؟ ہاں۔ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ او، وہ دیکھو، اس چٹان کے عقب سے روشنی ابھر رہی ہے، تالوت نے کہا۔ میں بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایک کر کے بہت سی مشالیں روشن کی جا رہی ہوں، اور پھر روشنی کا ایک دائرہ سا بن گیا۔ اٹھو، تالوت نے کہا، اور میں بھی غیر ارادی طور پر اٹھ گیا۔ ہم دونوں روشنی کی طرف بڑھنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد ان چٹانوں کے نزدیک پہنچ گئے جو عجیب ساخت کی تھیں۔ کئی چٹانوں نے مل کر ایک پیالہ سا بنا لیا تھا۔ ان کے رخنوں سے گزر کر اندر جایا جا سکتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی اوپر سے اترنے کی کوشش کرتا تو مشکل پیش آتی، کیونکہ ان کے اندرونی سرے ڈھلوان تھے۔ پھر ہم نے چٹانوں کے اوپر کچھ انسانی سائے ابھرتے دیکھے اور ہم جلدی سے آڑ میں ہو گئے۔ کوئی دلچسپ معاملہ ہے، تالوت نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ یقیناً چٹانوں کی بلندی سے یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، آؤ ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر چلیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تائید کی، اور چند منٹ کے بعد ہم پوشیدہ حالت میں چٹان کے ایک رخنے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر تقریباً 20 آدمی موجود تھے۔ یہ لوگ جانوروں کی کھال کی جیکٹوں اور چست پائجاموں میں ملبوس تھے۔ سروں پر بڑے بالوں والی گول ٹوپیاں تھیں اور پیروں میں پنڈلیوں تک جوتے۔ سب کے سب رائفلوں اور پستولوں سے مسلح تھے، بلکہ چٹانوں پر چڑھے آدمی کے پاس سٹین گنیں بھی موجود تھیں۔ قوی ہیکل اور خطرناک آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن ان کے چہرے سیاہ کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ تالوت نے شانے ہلا کر میری طرف دیکھا اور ہم ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔
प्याला नुमा चट्टानों के रखनों में मशालें लगी हुई थी। मखसूस साख्त की मशालें थीं, लेकिन उनके ऊपर साइबान भी थे। गोया मशालें लगाने की यह जगह इंसानी हाथों से तराशी हुई थी। इतने आदमी मौजूद थे, लेकिन ऐसी पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी जैसे वहां इंसानों का वजूद ही ना हो। और ये खामोशी काफी देर तक जारी रही। फिर चट्टानों में किसी घोड़े के टापों की आवाज उभरी और मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए लोगों में जिंदगी की एक लहर सी दौड़ गई। वो बेचैनी से चट्टानों के ऊपर देखने लगे और फिर उधर से एक आवाज सुनाई दी, वो आ गया है। नीचे मौजूद लोगों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। हम लोग चट्टानों के रखनों पर निगाह दौड़ा रहे थे। तब एक कवि हैकल शख्स उसी लिबास में एक रखने से अंदर दाखिल हो गया और अंदर मौजूद लोगों ने मुख्तलिफ जुमलों में उसका इस्तकबाल किया। वो सब इस अंदाज से मुअद्दब हो गए थे जैसे आने वाला कोई बहुत बड़ी हैसियत का हामिल हो। तालूत और मैं बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। क्या चक्कर है? तालूत ने सरगोशी की। मेरा ख्याल है चंद लम्हात में पता चल जाएगा, मैंने भी उसी अंदाज में कहा। खामोशी अब तक बरकरार थी। आने वाला देव हैकल इंसान था। वो कमर पर हाथ रखे सामने खड़े हुए लोगों को घूर रहा था। फिर उसने भारी आवाज में कहा, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आने वाले आ गए हैं। मैंने उन्हें पॉइंट 12 में ठहरा दिया है। वहीं पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्द मैं आप लोगों के सपुर्द कुछ काम करना चाहता हूं। हम सब मुस्ताद हैं। एक आदमी ने जवाब दिया। शहर की क्या रिपोर्ट है? हमारे आदमी खुश असलूबी से अपना काम कर रहे हैं। क्या आपने चहमगोइयां नहीं सुनी? हाँ, मैं मुतमईन हूं, लेकिन एक और बात भी मेरे इल्म में आई है। वो क्या? हमने महसूस किया है कि एक खुफिया तहरीक हमारे खिलाफ मसरूफ है। क्या मतलब? आपको इल्म है कि हमारे नुमाइंदे मलका के वाक़े को उछाल रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग उसकी तरदीद करते फिर रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को अपना हमख्याल बना लिया है। क्या वो लोग तुम्हारी निगाहों में आए? नहीं, हम उनकी तलाश में हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं। मेरा काम इतना कमज़ोर नहीं है कि मामूली किस्म के लोग उसमें रखना अंदाज हो सकें। ठीक है, हम भी उनके लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं। बस आज की गुफ्तगू यहीं तक महदूद थी। बहुत जल्द तुम लोगों को तुम्हारे ठिकाने पर काम से आगाह कर दिया जाएगा। बस अब तुम जा सकते हो। कवि हैकल कबाइली दोनों हाथ हिलाकर चट्टान की तरफ बढ़ गया। दूसरे लोग भी मुंतशिर होने लगे। ये क्या चक्कर है? मैंने तालूत की तरफ रुख करके कहा। ये तो मालूम करने से ही पता चलेगा। किससे मालूम करोगे? कोई भी जरिया निकाल लेंगे। तुम बताओ, क्या तुम्हें इन मामलात में कुछ दिलचस्पी महसूस हो रही है? हाँ, पुरस्कार लोग हैं। मलका के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये मलका कौन सी हो सकती है? किसी कबाइली रियासत की मलका। यहाँ सरहद पर बहुत सी रियासतें फैली हुई हैं, मैंने जवाब दिया। यार आरिफ, मामलात दिलचस्प रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। यकीनन। तो फिर बिस्मिल्लाह, आओ चलें। वो सब निकल चुके हैं। उनकी फिक्र मत करो, रासिम उनके बारे में बता सकता है, तालूत ने लापरवाही से कहा। और फिर हम भी चट्टान के रखने से बाहर निकल आए। थोड़े फासले पर हमारे घोड़े खामोश खड़े थे। समझदार जानवरों ने आवाज ना निकालकर हमारे साथ ताउन किया था। हम अपने घोड़ों के नजदीक आ गए। तालूत अपनी असली शक्ल में आ गया और मैंने भी शाहदाना का दोशाला उतार दिया। और फिर हम घोड़ों पर सवार हो ही रहे थे कि अचानक चट्टान के ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। खबरदार, तुम 2 पिस्तौलों की जद पर हो और मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। हम दोनों ही बुरी तरह उछल पड़े। हाथ बुलंद कर दो वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। आवाज फिर आई। आवाज की नुस्वानियत छुपी ना रह सकी थी, लेकिन उसमें सफाकी थी। ऐसा लगता था जैसे बोलने वाली जो कह रही है वही कर गुजरेगी। तालूत ने मुझे इशारा किया और फिर खुद भी हाथ बुलंद कर दिए। तुम। आवाज ने शायद मुझे मुखातिब किया था, क्योंकि अब हम उसे देख भी सकते थे। उसने पिस्तौल से मेरी तरफ इशारा किया था। ये रस्सी लो, अपने साथी के हाथ मजबूती से पुश्त पर बांधो। उसने एक रस्सी मेरी तरफ उछाल दी और फिर तालूत से बोली, चलो तुम दोनों हाथ पुश्त पर करके घूम जाओ। तालूत ने दोनों हाथ पुश्त पर किए और घूम गया। सुनो, मेरे पूरे बदन पर आंखें ही आंखें हैं। अगर तुमने कोई हरकत की तो मुफ्त में जान खो दोगे। क्या हम उन आंखों को टटोल सकते हैं? तालूत ने पूछा और ट्रिच की आवाज के साथ तालूत के पांव के करीब पत्थर की किरचियां उड़ गईं। उसने बेआवाज पिस्तौल से फायर किया था। बकवास से परहेज करो। मुझे तुम में से सिर्फ एक की जरूरत है, लेकिन अगर मेरा काम हो जाए तो मुमकिन है तुम दोनों ही को जिंदा छोड़ दूं। हम में से कौन सा पसंद है? तालूत ने पूछा। अगर इसके बाद तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आवाज हद दर्जा सर्द थी। कमाल है। तालूत एक ठंडी सांस लेकर बोला।
मैंने तालूत के हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए थे और चंद साथ के बाद मैं इस काम से फारिग हो गया। अब इसका असला निकाल कर नीचे डाल दो, पिस्तौल वाली ने फिर कहा। वो इत्मीनान से चट्टान पर पांव लटकाकर बैठ गई थी। उसके जिस्म पर वैसा ही लिबास था जैसा हमने उन मर्दों के जिस्म पर देखा था। बड़े बालों वाली टोपी ने उसका चेहरा ढका हुआ था। मुमकिन है उसके चेहरे पर भी स्याह नकाब हो। वो तारीकी की वजह से नजर नहीं आ रही थी। और फिर बर्फ का हल्का हल्का सा धुआं हमारे और उसके दरमियान हाइल था। हमारे पास असलहा नहीं है। बकवास मत करो, जो कुछ कहा जा रहा है करो, चलो जल्दी करो। मुझे शर्म आती है, मैंने कहा और तालूत हंस पड़ा। फिर जल्दी से बोला, इसकी बातों में मत आना, झूठ बोल रहा है। मेरे पास पिस्तौल मौजूद है और इसने मेरे हाथ भी ढीले बांधे हैं। ये देखो। तालूत ने रस्सी खोलकर दोनों हाथ सामने कर दिए। शुक्रिया, औरत ने गुर्राए हुए लहजे में कहा। तुम अच्छे आदमी मालूम होते हो। चलो अब तुम कसकर इसके हाथ बांध दो। मैं बदमाश तालूत की इस हरकत पर हक्का बक्का रह गया था। शरारत के मूड में था कम वक्त। उसने कसकर मेरे हाथ बांध दिए। क्या इसके पास पिस्तौल मौजूद है? दो। तालूत जल्दी से बोला। हालांकि दर हकीकत मेरे पास पिस्तौल नहीं था, लेकिन वो तालूत ही किया जो मेरे लिबास से 2 पिस्तौल ना निकाल लेता। तालूत ने 2 पिस्तौल निकालकर औरत के सामने डाल दिए। तुम्हारे पास भी पिस्तौल है? तालूत ने सादगी से कहा। तुम भी अपना पिस्तौल निकालकर डाल दो। और तालूत ने निहायत सादतमंदी से एक और पिस्तौल निकालकर चट्टान के सामने फेंक दिया। अपने हाथ बुलंद रखो, अब भी इसकी जरूरत है। हाँ, मैं खुद भी तुम्हारे लिबास की तलाशी लूंगी। मुमकिन है तुम्हारे पास दूसरा पिस्तौल मौजूद हो। मैं झूठ नहीं बोलता, समझी? तालूत ने गुस्सीले अंदाज में कहा। चलो मैं अपनी तसल्ली ही कर दूं। औरत चट्टान से कूद आई और फिर उसने तालूत के लिबास की तलाशी ली थी। फिर औरत एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गई। करीब से हमने उसका बखूबी जायजा लिया था। खासे हसीन जिस्म की मालिक थी, लेकिन काफी मोहतात नजर आती थी। क्या नाम है तुम दोनों का? ये खरबूज खान है और मैं तरबूज खान, तालूत ने जवाब दिया। मस्करापन मत करो, नाम बताओ। क्या मतलब? तालूत हैरत से बोला। क्या तुम दोनों के यही नाम हैं? हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है? जहन्नुम में जाओ, मुझे तुम्हारे नामों से गर्ज नहीं है। मैं तो तुमसे तुम्हारे सरबराह के बारे में जानना चाहती हूँ। सरबराह क्या होता है भाई खरबूज? तालूत ने मेरी तरफ रुख करके कहा। तुम ज्यादा नडर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आखिरी वार्निंग दे रही हूं, इसके बाद तुम में से एक को खत्म कर दिया जाएगा। तुम हमारी जोड़ी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? बिला वजह खत्म कर दोगी? तालूत ने उसी मस्करेपन से कहा। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ये लो। औरत ने पिस्तौल सीधा कर लिया। खुदा हाफिज भाई खरबूज, मौत जिस वक्त भी आ जाए उसी वक्त लिखी थी, रोजे महशर आवाज दे लेना। तालूत रूहानसी आवाज में बोला और औरत हंस पड़ी। मैं तुम्हारी दलेरी की कदर करती हूँ, लेकिन अब मैं वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बराहे करम मेरे सवाल का जवाब दो। मगर तुम्हारा सवाल ही टेढ़ा है, तालूत बोला। क्या अभी तुम चट्टानों के दरमियान नहीं थे? तब फिर क्या तुम उस गुफ्तगू में शरीक नहीं थे जो वहां हो रही थी? थे। तालूत इत्मीनान से बोला। मैं सरबरा के बारे में जानना चाहती हूँ। यही तो गलत है। सरबरा कौन सा था हमें भी नहीं मालूम। वही जिसने तुम लोगों को किसी के आने की इतला दी थी। हम लोगों को क्यों देता? हम तो खुद छुपे हुए थे। क्या मतलब? हमने इत्तफाकिया तौर पर ही उन्हें देखा था। बकवास कर रही हो। क्या तुम उनके साथियों में से नहीं हो? लानत है, हम तो गरीबुल वतन हैं। सैर करते करते इस तरफ आ निकले थे। अगर तीसरी बार तुमने मुझे झूठा कहा तो मैं कहती हूँ झूठ बोलने से बाज आ जाओ, औरत दांत कचकचा कर बोली। अगर तीसरी बार तुमने मुझे झूठा कहा तो? तालूत गुस्सीले लहजे में बोला। तो तुम क्या करोगे? खुदकुशी कर लूंगा, तालूत ने ढीले ढाले लहजे में कहा। और औरत फिर हंस पड़ी। काश तुम गद्दारे कौम ना होते, काश तुम मिल्लत फरोश ना होते। तुम्हारी ये दलेरी कैसे गलत रास्तों पर जा रही है। भाई खरबूज, क्या ये दुरुस्त है? तालूत ने फिर मेरी तरफ देखा। मस्करापन छोड़ दो, ये गलत फहमी का शिकार हैं। हमें इनकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए, मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। अच्छा, तो तुम ही गलत फहमी दूर कर दो। खातून, ये हकीकत है, हम दूर से आ रहे हैं। हमने रात गुजारने के लिए इन चट्टानों में पनाह ली थी। बर्फबारी शुरू होने के कुछ मिनट बाद हमें रोशनी नजर आई और हम तजस्सुस में डूबकर इधर आ निकले। तब हमने अंदर के मनाजिर देखे और जब सब चले गए तो हम वापस आए थे। यही वजह है कि हमारे घोड़े उन सबसे अलग बंधे हुए थे। क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? फिलहाल एक सबूत के अलावा और कोई सबूत नहीं है कि हमारे लिबास उनसे अलग हैं, जबकि वो यकसा लिबास में थे और वो लिबास तुम्हारे जैसा था। औरत सोच में डूब गई। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा।
तब तुम जहन्नुम में जाओ। बिला वजह मैंने वक्त बर्बाद किया। लेकिन सुनो, ज़ोरात में दाखिल होने की कोशिश मत करना। वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। हर अजनबी को शक की निगाह से देखा जाता है, और बाज़ औक़ात अगर उनके बारे में मुनासिब मालूमात मुहैया नहीं होती तो उन्हें गोली मार दी जाती है। सुनो खानम, अगर मुनासिब समझो तो हमें ज़ोरात के हालात से आगाह करो। फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, उसने कहा, और उसके मुंह से तेज सीटी की आवाज़ निकली। उसी लम्हे सफ़ेद रंग का एक घोड़ा दौड़ता हुआ उसके करीब आ गया। औरत निहायत फुर्ती से उस पर सवार हो गई। फिर उसने घोड़े को एड़ लगाई और हवा हो गई। उम्दा औरत है, तालूत तारीफी लहजे में बोला। अफसोस उसकी शक्ल नहीं देखी जा सकी। देख लेंगे, जरूर देख लेंगे, परवाह क्यों करते हो? तालूत तसल्ली आमेज अंदाज में बोला, और उसके लहजे पर मुझे हंसी आ गई। क्या ख्याल है, हो गई ना कहानी तैयार? शायद, मैंने भी हंसते हुए कहा। अबे तो फिर जल्दी करो, क्या हम उसका ताकुब नहीं करेंगे? तालूत ने घोड़ों की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं भी उसके साथ ही आगे बढ़ गया, और फिर हम घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर पहले वो लोग और बाद में औरत गई थी। लेकिन हमारे घोड़ों की रफ्तार बहुत सुस्त थी और हम बड़े इत्मीनान से चल रहे थे। रात की तारीकी और बर्फबारी की वजह से घोड़े भी सहमे सहमे चल रहे थे, इसलिए हमने रफ्तार तेज करने की कोशिश नहीं की। तालूत किसी सोच में गुम था। कई मिनट की खामोशी के बाद उसने कहा, क्या तुमने हालात पर कुछ गौर किया है आरिफ? किस किस्म के हालात पर? मैंने पूछा। भाई, वो लोग, उनकी गुफ्तगू और फिर औरत की बातें। कोई नतीजा अखज हो सका? मेरा जहन इस काबिल नहीं है, मैंने जवाब दिया। टोपी पर से बर्फ झाड़ते रहो। क्या तुम्हें ज़ोरात का नाम याद नहीं है? खान ज़ोरात की शहबाज खान भी बहुत तारीफ किया करता था। याद है, बिल्कुल याद है। गोया नेक दिल खातून काबिल तारीफ है, और उसी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। उन लोगों के अल्फाज के मुताबिक मलका के बारे में क्या प्रोपागेंडा किया जा रहा है, और फिर आने वाले जो पॉइंट नंबर 12 पर तैयारियां कर रहे हैं। कैसी तैयारियां? शायद इनकलाब लाने की। गोया खान ज़ोरात की जिंदगी को खतरा है। लेकिन एक पार्टी, उस शख्स के अल्फाज याद करो। उसने कहा था कि एक पार्टी उनके खिलाफ मैदान में उतर आई है। क्या ये लड़की उस दूसरी पार्टी की फर्द तो नहीं जो उन लोगों के ताक़ुब में यहाँ आई थी और हमें उनका आदमी समझकर हमसे मालूमात हासिल करना चाहती थी? खूब। क्या तुम्हारे यहाँ भी जासूसी नॉवल निगार होते हैं? मैंने हैरतज़दा अंदाज में तालूत को घूरते हुए कहा। क्यों, क्या मेरे अंदाजे गलत हैं? तालूत ने झिल्लाकर पूछा था। ये बात नहीं, लेकिन तुम्हारी नुक्तादानी बहुत खूब है। मसला यह है कि क्या हम ज़ोरात ही की तरफ जा रही हैं? गलत या सही रुख का अंदाज़ा किस तरह हो? बकवास मत करो, बस चलते रहो। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक उड़ाया है, इसे याद रखना, तालूत ने कहा। अरे अरे, क्या तुम नाराज हो गए? मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, लेकिन मेरी बात पर गौर करो और इसके अलावा कोई और कहानी तैयार करके बता दो, तालूत ने कहा। हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी तालूत, लेकिन प्रोग्राम क्या है? क्या पहले से प्रोग्राम बनाने की खास जरूरत है? देखेंगे, हालात को जांचेंगे, और फिर जो भी मजलूम हो उसकी मदद करेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ना जाने कौन से हंगाम में जन्म लेने वाले थे। हम उन आखिरी पहाड़ियों के नजदीक पहुंच गए, और हम एक छोटे से दर्रे से गुजरने के बाद जब दूसरी तरफ पहुंचे तो हैरान रह गए। उन जर्द जर्द पहाड़ियों के उस तरफ, इस वीरान मैदान से परे, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया आबाद होगी गुमान भी ना था। रियासत ज़ोरात का शहर ज़ोरात जमुर्द की प्लेट में रखे हुए सफेद हीरे की तरह था। चारों तरफ पहाड़ियों पर सब्जा चढ़ा हुआ था, जिसमें अब थोड़ी देर की बर्फबारी से सफेद जर्रात अटक गए थे, और उस जमुर्दी महल में कहीं कहीं सफेदी जमा हो गई थी। ऊंचे नीचे खूबसूरत मकानात, लकड़ी के, पत्थर के, जिनकी बाज खिड़कियों से रोशनी चमक रही थी। सोया सोया शहर, खामोश खामोश सा। हमने घोड़े रोक लिए। तालूत और मैं भी खामोशी से सामने देख रहे थे। अलबत्ता हमारे घोड़े मुंह से खुर की आवाज निकालकर अपने बदन को झटक कर बर्फ गिरा देते थे। ये ज़ोरात है, मैंने आहिस्ता से कहा। खासा बड़ा शहर है। हाँ, मैं भी इसे देखकर हैरान हुआ हूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। आओ आरिफ, रात की खामोशी से फायदा उठाकर हम इस शहर में पनाह हासिल करें। मुमकिन है दिन की रोशनी ज़ोरात के शहरियों को हमारी अजनबियत का एहसास दिला दे। तालूत ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया और मैं भी उसके साथ चल पड़ा। कहाँ पनाह हासिल करोगे तालूत? देखते हैं, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया, और मैं खामोश हो गया। घोड़े सुस्त रफ्तारी से चलते हुए ज़ोरात के बाजारों में दाखिल हो गए। बाजार सुनसान पड़े हुए थे, लोग गहरी नींद में मस्त थे।
बिलाशुबा ज़ोरात को एक जदीद शक्ल दे दी गई थी। बहुत काफ़ी रकबे में आबाद था ये शहर। तालूत एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक गली से दूसरी गली में दाखिल होता रहा। फिर वो एक बड़े मकान के अहाते के सामने रुक गया, जहां शहर का वाहिद फर्द जाग रहा था। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में हुक्का था, और कभी कभी हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी गूंज उठती और उसके धुएं की सौंधी बू फैल जाती। आओ, तालूत ने कहा और घोड़े से उतर गया। घोड़ों की बाग पकड़े हुए हम दोनों मकान के अहाते में दाखिल हो गए।